Good morning all. In previous video lecture, we have seen the concept of history, Java features, and how Java differ from C and C++. Now in this video lecture, we are going to see the architecture of Java virtual machine, and if possible, we will see the concept of Java and internet. Now, basically, what is Java virtual machine? Already, all of you know that Java is a platform independent programming language, whereas other programming languages like C or C++, these programming languages are platform dependent. Here, what is platform? Platform is nothing but the uh, operating system on which your program is executed. Now, for Java, when you install Java on your machine, it will install a Java virtual machine. हमें मालूम है Java means virtual means what? It is a आभासी. मराठीमध्ये त्याला आभासी म्हणतात. Means when I install Java on my machine, already one virtual machine is also installed. And it is responsible for executing your program. Whereas in C or in C++, if you know that figure which I have drawn in last video lecture, that your C compiler directly interacts with your operating system, whereas in Java, this your program interacts with the JVM, and then there is a help of operating system for executing the Java program. Second thing is output of your C or C++ program is .exe. Exe means it is a directly executable file, whereas Java's output is .class file. So these are some differences. Now what is Java virtual machine? Again, जैसा हमारा कंप्यूटर का भी आर्किटेक्चर रहता है, उसी तरह जावा वर्चुअल मशीन का भी एक आर्किटेक्चर रहता है. This architecture contains class loader, class area, heap, stack, program counter register, native method stack, execution engine, native method interface, and Java native libraries with memory area allocated by Java virtual machine. So this Java virtual machine also allocates the memory area for the variables or the methods which are going to be used in your program. Now one by one we will see what is class loader and all the things. Now what is class loader? Class loader is a subsystem of JVM which is used to load class files. Whenever we run the Java program, it is loaded first by the class loader. There are three built-in class loaders in Java. म्हणजे काय की आपण जेव्हा प्रोग्राम रन करतो तेव्हा रन करण्यासाठी जे क्लासेस वगैरे लागतात ते सगळे क्लासेस लोड करण्याचं काम जर कोण करतं, जसं आपलं सी मध्ये होतं बाकी हॅश इन्क्लूड. व्हॉट इज हॅश इन्क्लूड? हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. प्री मीन्स व्हाट? मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले execute that particular header file. Why these files are used? Because the library functions which you are going to be used in your program, prototype of these functions is stored in that particular header file. Prototype means what? How to use that file, how many parameters you can pass to that file, which value will be returned by that file. All these things are present in header file. Just like that, class loader loads all the classes which are going to be used in your Java program. Now there are three built-in class loaders in Java. Built-in means what? These are called as library class loaders. First one is a bootstrap class loader. It is the first class loader which is the super class of extension class loader. It loads the rt.jar file. If you see or if you search on the internet what is rt.jar files, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है. विच कंटेन्स ऑल क्लास फाइल्स ऑफ जावा स्टैंडर्ड एडिशन लाइक java.language, java.util, java.io. आगे जैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे वैसे आपको पता चलेगा कि वो व्हाट इज यूज ऑफ java.language, व्हाट इज यूज ऑफ java.util, व्हाट इज यूज ऑफ java.io. जैसे हम वहाँ पे इंक्लूड stdio.h करते थे, उसी तरह से जावा में इंपोर्ट करना पड़ता है. Import java.io.star. So that IO class is a library class
which deals with all input output operations which are present in Java. Just like that util, see in C or in C++ there is a direct statement to read the contents. C में scanf था, C++ में cin था. जावा में रीड करना उतना इजी नहीं है. देर आर सो मेनी मेथड्स टू रीड द वैल्यूज. वन मेथड इज बाय यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, अनदर इज बाय यूजिंग स्कैनर क्लास. वो आगे हम बताएंगे. लेकिन व्हाट इज यूज ऑफ बूटस्ट्रैप, तो जो भी लाइब्रेरी क्लासेस है वो सब क्लासेस और ये पैकेज क्लासेस जिसे बोलते हैं वो सब ये rt.jar फाइल में रहते हैं. Second one is extension class loader. This is the child class loader of Bootstrap and parent class loader of system class loader. It loads the jar files located inside Java home. See, यहाँ पे डॉलर लिखा है. नॉर्मली जावा प्रोग्रामिंग सीखते वक्त कोई लिनक्स का यूज करता है या तो फिर कोई विंडोज का यूज करता है. तो जावा होम डॉलर लिखा है मीन्स व्हाट, आपकी जावा की होम डायरेक्टरी. नॉर्मली दिस डायरेक्टरी इज program files dot slash java, c:/program files slash java. उसके आगे आपकी बिन डायरेक्टरी रहेगी, बाकी सब डायरेक्टरीज उसके आगे रहेंगे. सो व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द जावा प्रोग्राम, पहले पहले हम IDE यूज नहीं करेंगे. वी आर नॉट यूजिंग एनी नेटबीन्स और व्हाट यू कैन से एनी अदर IDE फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द जावा. वी सिंपली यूज अ नोटपैड एंड अ कमांड प्रॉम्प्ट टू राइट एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम्स. लेकिन जब मैं जावा इंस्टॉल करता हूं तो उसकी एक होम डायरेक्टरी रहती है. जैसे कि मैंने कहा कि प्रोग्राम फाइल्स डॉट जावा स्लैश जावा, दिस इज द नॉर्मल डायरेक्टरी. उसके अंदर रहता है JDK जो भी आपका वर्जन है जावा का वो, और उसके बाद बिन वगैरह बाकी सब आता है. तो वहां पे उसमें JRE lib ext डायरेक्टरी में जितने भी क्लासेस रहेंगे और जार फाइल्स रहेंगे उसमें के जो क्लासेस है, all these classes are loaded into memory and that class loader is called as extension class loader. And third one is system or application class loader. This is the child class loader of extension. See, bootstrap का child extension है, system application class loader का parent extension है. जैसे कि हमने शायद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन C++, वहां पे कैसा था, क्लास ए उसके नीचे क्लास बी उसके नीचे क्लास सी. उसी तरह से यहाँ पे क्लास लोडर में बूटस्ट्रैप पहले, एक्सटेंशन सेकंड एंड सिस्टम और एप्लीकेशन क्लास लोडर थर्ड पार्ट पे आता है. दिस इज द चाइल्ड क्लास लोडर ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर. इट लोड्स द क्लास फाइल्स फ्रॉम क्लास पाथ. जैसे मैंने आपको कहा कि जावा का एक पाथ होता है जिसे हम लैंग्वेज के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसके हम क्लास पाथ कहते हैं रिगार्डिंग जावा. What is class path? Once you set the class path, it is possible to execute your programs from any directory. So, what is that class path? तो class path यहाँ पे जो भी है आपके सिस्टम में, अगर आप नॉर्मली इंस्टॉल करते, जैसे हमारा प्रोसीजर है इंस्टॉलेशन का, नेक्स्ट 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 करते अगर जाते हो तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम फाइल्स में जावा में JDK में बिन, इस तरह का कुछ सिनेरियो बनेगा आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का. सो दैट पर्टिकुलर पाथ इज कॉल्ड एज क्लास पाथ. तो उस क्लास पाथ में जितने भी क्लास फाइल है ये लोड करने का काम कौन करेगा, तो सिस्टम और एप्लीकेशन क्लास लोडर करेगा. देन नेक्स्ट इज अ क्लास मेथड एरिया. अगर आपने ये दिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे का जो ये दिस वन मिनट, ये जो दिख रहा है दिस इज अनदर एरिया. तो इसमें क्या क्या है, तो देयर इज अ क्लास एरिया, क्लास और मेथड एरिया भी जिसे हम कहते हैं. क्लास और मेथड एरिया स्टोर्स ऑल क्लास स्ट्रक्चर सच एज रन टाइम, फील्ड, मेथड्स, डाटा, द कोड फॉर द मेथड्स. मेथड मीन्स व्हाट, अब तक आपने जो C और C++ में पढ़ा है ना, वहाँ पे हम इसे फंक्शंस बोलते थे. अब यहाँ पे मेथड बोलना है, जैसा अपन मेन फंक्शन म्हणत होतो. नाउ इन जावा यू हैव टू कॉल इट एज अ मेन मेथड. लाइक दैट यूजर डिफाइंड मेथड्स आर डिफरेंट. तो इस तरह से कुछ रहेगा आगे चल के. सो ये सब लोड करने का काम कहाँ पे है, तो वो क्लास एरिया या क्लास मेथड एरिया में है. सेकंड वन इज हीप
As all of you know, there are some classes and objects in C++. These are not present in C because C is a structured, whereas C++ is a object oriented, and now Java is called as pure object oriented programming. इसके बारे में शायद मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि as per as my opinion is concerned, why Java is pure object oriented, because in C main function is different thing and your class is different thing. Although it is possible to declare class in a main method, but main method is different and class is different. Whereas in Java, main method is a part of a class itself. Means without using class it is not possible to write a Java program. Whereas in C++ it is possible to write a C++ program without using और विदाउट डिक्लेयरिंग एनी क्लास. तो वहाँ पे क्लास डिक्लेयर किए बगैर भी हम प्रोग्राम लिख सकते थे, लेकिन जावा में वैसा नहीं है. मेन फंक्शन, कोर जावा में एटलीस्ट, मेन फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ क्लास. सो व्हाट इज हीप? इट इज यूज्ड टू ऑब्जेक्ट अलोकेट करने का काम क्या कौन करता है? तो वो हीप करती है. स्टैक, जावा स्टैक स्टोर्स फ्रेम्स, इट होल्ड्स लोकल वेरिएबल्स, पार्शियल रिजल्ट्स. पार्शियल रिजल्ट्स में कभी कभी क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन करके रखते हैं और उसके एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम नहीं होने की वजह से उसको हम थोड़ा साइडलाइन करके बाकी कैलकुलेशन करके फिर उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं. तो ईच थ्रेड एंड प्लेज अ पार्ट इन अ मेथड इनवोकेशन एंड रिटर्न. मेथड इनवोकेशन मीन्स व्हाट? जैसे हम कहते थे कि क्लास कॉल द फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये चीज़ें अगर आपको मालूम है C++ की, तो यहाँ पे भी क्या है कि दिस स्टैक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग अ मेथड, एग्जीक्यूटिंग अ मेथड और रिटर्निंग द वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेथड. नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर. प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर अगर आपने 8085 या माइक्रो प्रोसेसर कहीं भी पढ़ा है तो वहाँ पे प्रोग्राम काउंटर इज अगेन यूज टू पॉइंट द इंस्ट्रक्शंस विच इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. उसी तरह से प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. करेंटली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस देने का काम कौन करता है? तो वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर करता है. देन नेटिव मेथड स्टैक, इट कंटेन्स ऑल द नेटिव मेथड्स यूज्ड इन द एप्लीकेशन. जितने भी आपके एप्लीकेशन में नेटिव मेथड्स होंगे, ऑल दिस मेथड्स आर present in native method stack. Next one is execution engine. Again it is a very important thing. It is a virtual processor. वर्चुअल प्रोसेसर में क्या क्या आएगा? हम बहुत बार कहते हैं कि जावा इज अ इंटरप्रेटर एज वेल एज अ कंपाइलर. इंटरप्रेटर रीड द बाइट कोड स्ट्रीम इन एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, और दूसरा जावा के पास होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर. इट इज यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. JIT compiles parts of the byte code that have similar functionality at the same time and hence reduces the amount of time needed for the compilation. अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ सेम प्रोसीजर है, रिपीटेटिवली आए है, तो इट इज जॉब ऑफ JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर कि ऐसे फंक्शनैलिटीज के जितने भी कोड है वो साथ में लाए और टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम है उसको कम करे. Here the term compiler refers to the translator from instruction set of Java virtual machine to the instruction set of the specific CPU. Java virtual machine ने जो भी कोड एग्जीक्यूट करके या कंपाइल करके दिया है उसको चेक करने के लिए इसका काम रहता है कि दिस एग्जीक्यूशन इंजन इज यूज्ड. नेक्स्ट वन इज जावा नेटिव इंटरफेस, JNI जिसे हम कहते हैं. Now what is this? This is a framework which provides an interface to communicate with another applications written in another languages like C or C++ or assembly language etc. तो ये इंटरफेस बेसिकली क्या करता है कि हमने अगर कोई C++ का प्रोग्राम लिखा है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए, जावा के प्रोग्राम में इंटीग्रेट करने के लिए ये फ्रेमवर्क का यूज होता है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ JVM कि JVM में क्या क्या है. नेक्स्ट थिंग इज जावा एंड इंटरनेट. अगर आपको किसी को मालूम है तो हॉट जावा इज द ब्राउजर. जावा इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द इंटरनेट बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम इज रिटन इन जावा was hot Java. Web browsers to run applets on the internet.
एप्लेट अगर आपको मालूम नहीं है तो जावा में हम विजुअल बेसिक जैसी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज एप्लेट्स. So instead of text interface, there is a graphical user interface which can be run on the internet. Internet users can use Java to create applet programs and run them locally using a Java enabled browser such as Hot Java. तो उस वक्त पे Hot Java browser था. Nowadays Chrome also supports all JavaScripts and all the things. Java applets have made the internet a true extension of the storage system of the local computer. तो यहाँ पे देखो आपके पास दो कंप्यूटर है, यहाँ पे दिया है. सो देयर आर टू कंप्यूटर्स. होता क्या है, ये रिक्वेस्ट इसकी भेजेगा, ये रिक्वेस्ट इसकी भेजेगा, यहाँ से जो भी रिस्पांस आएगा वो इधर जाएगा और ये मशीन का जो भी रिस्पांस आएगा वो इधर जाएगा, बट इट इज़ थ्रू नेट. तो हम अगर जैसे कि हम अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रन दैट वेबसाइट ऑन लोकल वेब सर्वर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिप्लॉइंग द वेबसाइट ऑन एनी अदर वेब सर्वर. तो पहले हम क्या करते हैं कि उसको पहले हमारे लोकल मशीन पे रन करके देखते हैं कि वेदर इट इज़ ओके और नॉट रिगार्डिंग डिजाइनिंग, रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिंग द फाइल्स और रिगार्डिंग लिंकिंग वन फाइल विथ अनदर फाइल. ये सब चेक करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि लोकल मशीन पे रन करके देखते हैं. तो उसी तरह से जावा, हॉट जावा बोल के एक जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर था विच इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द जावा एप्लेट्स, बट nowadays it is possible to execute applets in Google Chrome also. देन यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है. वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इंटरनेट कंप्यूटर्स. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस. World Wide Web is an information retrieval system designed to be used in the internet's distributed environment. Distributed environment इंटरनेट का रहता है, ये भी सभी को मालूम है. और ये इंफॉर्मेशन आइदर रिट्राइव करता है या तो फिर सेंड करता है. www means World Wide Web contains web pages that provide both information and controls. मैंने बहुत बार स्टूडेंट को बोला है कि ये कुछ वेबसाइट्स डायनेमिक रहते हैं, कुछ वेबसाइट्स स्टैटिक रहते हैं. जो पढ़ने के काम आते हैं दीज वेबसाइट्स आर कॉल्ड एज स्टैटिक वेबसाइट. और अगर हम एमपीएससी की वेबसाइट देखें या यशवंत कॉलेज की अपनी फीस की वेबसाइट जो कि थोड़ी सी अलग से बनी है वो देखें, तो वहाँ पे जहाँ पे हम डाटा देते हैं और वो स्टोर रहता है google.com gmail.com, हम पासवर्ड देते हैं, हर बार वही पासवर्ड देना पड़ता है, मीन्स योर डेटा इज स्टोर्ड समवेयर. तो डायनेमिक वेब पेजेस का भी कंसेप्ट आता है. देन वेब पेजेस कंटेन्स HTML टैग्स दैट इनेबल अस टू फाइंड, रिट्राइव, मैनिपुलेट एंड डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स वर्ल्ड वाइड. बेसिकली हम HTML में ही पहले वेबसाइट बनाते थे, उसके बाद CSS आया, फिर जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होने लगी, VB स्क्रिप्ट भी यूज़ होने लगी. नाउअडेज इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ वेबसाइट बाय यूजिंग पाइथन और लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आल्सो. बिफोर जावा द वर्ल्ड वाइड वेब वाज लिमिटेड टू डिस्प्ले ऑफ स्टिल इमेजेस एंड टेक्स्ट. With the help of Java, www is capable of supporting animation, graphics, games and wide range of special effects. पहले जब जावा से पहले जब www था वो स्टिल इमेजेस एंड टेक्स्ट ही डिस्प्ले करता था. जावा जब से इस बिजनेस में आया है तब से आप ग्राफिक्स, गेम्स, वीडियोस, स्पेशल इफेक्ट भी हम वेबसाइट पे देख सकते हैं. देन जावा कम्युनिकेट विथ वेब पेज थ्रू अ स्पेशल टैग कॉल्ड एज एप्लेट. जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि व्हाट इज एप्लेट, विजुअल प्रोग्रामिंग ऑफ जावा में बी कॉल्ड एज एप्लेट. Java user sends the request for an HTML document to the remote computer's net browser. मीन्स हम जैसे फॉर्म भर के लेते हैं ना, किसी स्टूडेंट का फॉर्म भर के लेना है थ्रू वेब, अगर मुझे लेना है तो हम क्या करते हैं कि उसका फॉर्म बनाते हैं, सबमिट बटन रखते हैं. व्हेन यू सबमिट द डेटा, देन डेटा एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर करंट लोकल मशीन टू द सर्वर so that it should be placed somewhere in the server. The web browser is the program that accept request, process the request and send the required documents. वेब ब्राउज़र बहुत सारे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, बहुत सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर है. आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ कीजिए.
Then the document contains the applet tag which identifies the applet. The corresponding applet is transferred to the user computer. ये होगा सर्वर साइड का कि मेरे अगर किसी सर्वर के प्रोग्राम में या सर्वर के HTML या जावा के फाइल में कोई एप्लेट है तो वो एप्लेट पहले यूजर जहाँ से ऑपरेट कर रहा है वहाँ पे वो पहले सेंड होगा. The Java enabled browser on the user's computer interprets the bytecode and provide the output. Accordingly वो वहाँ पे रन होगा. कहाँ पे? क्लाइंट मशीन पे. So thank you very much for watching this short video. In this video we have seen the concept of Java virtual machine and Java and the internet. In next video lecture we will see the concept of Java environment and basic structure of Java program. So thank you very much for watching this video. If you like the video then kindly share this channel with your friends. Thank you very much.